the topical worksheet practice of the carboxylic acids and alcohols. Previously, we had completed the literature of this chapter, but we could not practice the questions. So now we will resume from the same topic of our carboxylic acid and alcohols. After completing the topical worksheet of this chapter, we will move on to the next chapter, which is polymers. And then I will take a combined test of this chapter, alcohols, carboxylic acid, along with the polymers. Since it is a part of the organic chemistry. Organic chemistry में हमारे पास 3 टॉपिक्स आते हैं. एक पिछला था इससे पहले, डेट इज हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमने अल्केन और अल्कीन्स को स्टडी किया था. और उसके बाद फिर ये चैप्टर है विच इज alcohols and carboxylic acids. और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है polymers. So these are the 3 sub topics of the organic chemistry. Now we will be selecting and we'll be doing the selective questions from this worksheet because इसमें हमारे पास तीनों ही topics हैं. हाइड्रोकार्बन्स के भी क्वेश्चंस हैं, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के भी और पॉलीमर्स के भी. सो हम इसमें से क्वेश्चंस को सिलेक्टिवली करेंगे. Alright. Now question number 1. Question 1 says that which row is correct for ethanol? Ethanol की formation क्या है? And I expect that you have revised the literature of this chapter since we have already covered. We have the notes and you have the recorded lessons, so you must have been revising this chapter. हमारे पास बर्निंग की बात की जा रही है, तो बर्निंग का मतलब यहाँ पे कंबस्शन है. और अल्कोहल्स की कंबस्शन या बर्निंग होती है, और हमें याद है कि इसका पर्पस जो है वो एज ए फ्यूल भी होता है. अल्कोहल्स एज अ फ्यूल इज आल्सो यूज्ड in the vehicles. So yes, it does burn. So A and B are correct. And made by fermentation. तो हमारे पास 2 मेथड से अल्कोहल्स की फॉर्मेशन के. एक था स्टीम फॉर्मेशन, या इसको हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, और सेकंड वन इज फर्मेंटेशन. तो yes, it does form by the fermentation. So that's why the correct option is A. All right. So next question number 66. Question 66 जो है, this part will be included in the petroleum topic. तो हम इसको अभी के लिए इसको लीव करते हैं. We'll be doing this question later on. Question number 67. Which compound does not belong to the same homologous series as the other 3 compounds? कौन सा कंपाउंड में से बिलोंग नहीं करता बाकी होमोलोगस सीरीज को? यहाँ पे होमोलोगस सीरीज से मतलब फंक्शनल ग्रुप भी है, और फंक्शनल ग्रुप में वी रिमेंबर इसमें अल्कोहल्स आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन्स, एस्टर्स, ये सब जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप भी हैं और एट द सेम टाइम ये होमोलोगस सीरीज भी हैं. हमने में से लोकेट करना है कि कौन सा वाला होमोलोगस सीरीज का ये कौन सा कंपाउंड बिलोंग नहीं करता. सो व्हाट डू यू थिंक? बी. सो व्हाट वुड यू, बिलाल? बी. ए सी डी में वी हैव दिस होमोलोगस सीरीज. किसको बिलोंग करते हैं ये?
Okay. And what do you say? I'm sure you did not revise, Bilal, and I'm so sure you did not revise that either. R या carbon bonded with the OH or ये OH. This OH is the hydroxyl group, and hydroxyl group is present in the alcohols. So these compounds which I have marked, they are all alcohols. हाँ वही तो चैप्टर कर रहे हैं. इस चैप्टर का नाम ही alcohols and carboxylic acid है. And to which homologous series this compound belongs? Carboxylic acid. Hmm. Yes. So B is the correct option. Question number 68. The structure of an alkene and the structure of an ester are shown. What are the names of the P and the Q? अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक पार्ट प्रीवियस चैप्टर का अल्कीन्स का और एक पार्ट जो है वो क्यू का है. सो अगर तो आपकी इसकी रिवीजन अच्छी है, then you are in a position to give the answer of this question. If you are not at the position right now, आपका पिछला चैप्टर रिवाइज नहीं अच्छे से, तो फिर नहीं आप दे सकते आंसर. थिंक ऑफ द आंसर, यू कैन गिव द आंसर. नो. Those from the online side, please give me your answers in the chat box. Ji, Ahmed and Sarah, what are your answer of this question? Question number 68. Okay, Ahmed, I think you did not revise either. तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको अल्कीन की भी पिछले टॉपिक की करवा देता हूँ. जो नंबर 1 होता है वो इंडिकेट करता है कि किस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्डेड है. डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप बिटवीन कार्बन टू कार्बन. ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है. तो इसकी पोजीशन आपने स्टार्ट करनी है पोजीशन नंबर 1, 2, 3 and 4. आप इस डायरेक्शन से भी जा सकते हैं और दूसरी डायरेक्शन से भी मूव कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4. दोनों सिचुएशन में हमारे पास कार्बन नंबर 2 है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है. द स्टार्टिंग पोजीशन वो 2 है. सो इसलिए इसके नेम में भी आपको 2 मिलना चाहिए. बाकी आपका क्वेश्चन है ब्यूट, तो ब्यूट जो होता है वो 4 को रिप्रेजेंट किया जाता है. 5 के लिए पेंट है. सो ब्यूट टू इन हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम. और प्रोपाइल इथेनोएट. ओके, अब यहाँ पर आते हैं. एस्टर्स के नेम में हमेशा पहला जो नाम होगा वो अल्कोहल से मिलेगा. अल्कोहल से पहले मिलेगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, और सेकंड पार्ट नेम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलेगा. ये रूल याद रख लें. तो सेकंड पार्ट आपको उस नेम का वहां से मिल रहा है. अल्कोहल की अब पहचान क्या, आइडेंटिटी क्या है इसमें? जहां पे कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द अल्कोहल. और जहां पे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा,
कार्बोनाइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। अब आप काउंट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला जो पार्ट है उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। 3। दिस पार्ट विल बिकम प्रोपेनोएट। एस्टर के नेम में प्रोपेनोएट हम कहते हैं। और जिस पार्ट पे 2 कार्बन है वो अल्कोहल से आया है उसके नेम में हम एंड पे वाई एल लगाते हैं। सो वी हैव 2 कार्बन एटम्स इन दिस पार्ट, सो इट बिकम्स इथाइल। इनको कंबाइन कर दें, you get the name ethyl propanoate। Ethyl propanoate. So ethyl propanoate we have over here and here. So correct option is C। ठीक है, ये रूल आपने याद रखना है। Question number 69. What is the advantage of producing ethanol by fermentation of sugar compared to the catalytic addition of steam to the ethene? इसको steam formation भी कहते हैं अल्कोहल की, या हाइड्रेशन मेथड। फर्मेंटेशन से क्या हमें फायदा मिल रहा है यहाँ पे। द अल्कोहल प्रोड्यूस इज प्योरर। तो अगर हम याद करें हमारे पास इस केस में प्योर नहीं था, उसके अंदर वाटर भी ऐड होता था, वाटर प्लस अल्कोहल। इसमें सॉरी, फर्मेंटेशन का प्रोसेस में अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड थी, और इफ वी लुक एट द लिटरेचर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन अलोंग विद द अल्कोहल, ये दो चीजें बनती थी फर्मेंटेशन में। सो दैट्स द रीजन कि हमारे पास फर्मेंटेशन की ये ये इसका एडवांटेज नहीं है, दिस इज डिसएडवांटेज, कि इसमें प्योर नहीं बनता था बल्कि इम्प्योर बनता था। रॉन्ग बात की जा रही है, इम्प्योर बनता था और ये इसका डिसएडवांटेज है। बी से द प्रोसेस इज फास्टर, तो ये स्लो रिएक्शन था क्योंकि इसमें हम यीस्ट यूज करते हैं। यीस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बीइंग अ लिविंग बॉडी, लिविंग थिंग, इट रिएक्ट स्लोली। जिस तरह बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने कोई भी रिएक्शन होते हैं वो स्लो होते हैं, इसलिए इट इज नॉट अ करेक्ट वे एंड नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सी से द प्रोसेस यूजेस हाई टेम्परेचर, तो इसमें हम हाई टेम्परेचर यूज नहीं कर रहे थे बल्कि हम इसमें लो टेम्परेचर यूज किया जा रहा था एज कम्पेयर टू द स्टीम फॉर्मेशन। स्टीम फॉर्मेशन में ज्यादा हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है, so we use low temperature। D says the process uses renewable raw materials. So yes, renewable raw materials हैं क्योंकि we use a glucose, and glucose can be obtained by vegetation, by cultivating the glucose based plants। Plants से हमें glucose मिल सकता है या cereals में से मिल सकता है। So that's why D is a correct option। Question number 70 पॉलीमर का है। वी लीव दिस क्वेश्चन, हम जब पॉलीमर्स का करेंगे तब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 71 भी। क्वेश्चन 72 हाइड्रोकार्बन का। क्वेश्चन 73 an ester is formed when a carboxylic acid reacts with an alcohol, which ester is formed when propanoic acid and ethanol react। तो मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट दिया,
अब आप इसको सोचें कैसे हमें पता लगेगा कौन सा ये एस्टर बन रहा है। प्रोपेनाइक एसिड में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 3। prop stand for 3 and eighth stand for 2. 2 carbon atoms and 3 carbon atoms. हमारे पास जो कि प्रोपेनाइक एसिड है 3 कार्बन एटम्स होंगे इसके, और उसके ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। फिर इसके साथ हमने बॉन्ड करना है अल्कोहल का पार्ट, और उसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, दैट विल बी कनेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। ये कनेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे ये बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा न्यू बॉन्ड बनता है जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्वाइन करते हैं? कौन सा वाला न्यू बॉन्ड यहाँ पे आपको पूरे एस्टर में नजर आ रहा है जो बन रहा होता है? यस स्टूडेंट्स, ऑनलाइन साइट आप भी बता सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड न्यू बनता है जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्वाइन करते हैं? ऑक्सीजन। क्या? 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन विद सिंगल बॉन्ड, अब इसमें भी 2 चीजें हैं, ये वाला या फिर ये वाला। मैं वही पूछ रहा हूँ, कार्बन ऑक्सीजन 2 है ना, ये वाला ये पे वाला? राइट वाला, दिस वन। रॉन्ग, ये वाला, लेफ्ट वाला। ये अल्कोहल का हाइड्रोजन रिमूव हुआ था और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव हुआ था। इस कार्बन के राइट पे OH था, वो रिमूव हो गया था। OH पूरा रिमूव होता है। और ऑक्सीजन अल्कोहल का जो था उसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, तो पीछे ये ऑक्सीजन रह गया था, तो इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना, दिस इज द न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। ओके, अब आपके सामने ये एस्टर बना हुआ है। नाउ कंपेयर दिस स्ट्रक्चर विद द गिवन कंडेंस फार्मूलाज। और इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है। चलें जो गिवन ऑप्शंस हैं उसी में देख लें। हमारे पास ये जो पार्ट है C with 2 ऑक्सीजन एटम्स, इसको हम कहते हैं CO2। इस तरह से ये ऑर्डर वाइज होगा, CO2। अब ये जो पार्ट होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, उस ऑर्डर में चलें। और ये जो पार्ट होगा ये अल्कोहल का पार्ट है। तो अल्कोहल के 2 कार्बन ठीक हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के तो 3 थे। सो ए इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ है? बी को देखते हैं। बी में कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 कार्बन एटम्स हैं, तो वो रॉन्ग हो गया। हमें 3 चाहिए थे, वही वाली बात है, ये भी रॉन्ग पार्ट है। ये पार्ट ठीक था। और अल्कोहल में इसने इसको भी रॉन्ग कर दिया, हमें इसमें 2 चाहिए थे, तो उसका ये पार्ट भी रॉन्ग है। थर्ड है CH3, यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, तो ये पार्ट ठीक है। बट अल्कोहल का 1 कार्बन है, सो दिस इज रॉन्ग। ये भी रॉन्ग होगा, विच मीन्स इसके जो डी ऑप्शन भी मिसिंग है ड्यू टू फॉर्मेटिंग। वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम इसको यहीं से डिवाइस कर सकते हैं। इतना पार्ट ठीक है और इधर से ये पार्ट ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। CH3, CH2, CO2, और उसके बाद क्या होना चाहिए? CH2, CH3। ये इसका फोर्थ ऑप्शन थी, डी,
So that's why D is the correct option. जी Sarah, is it clear to you? Sarah, are you there? यस सर। क्लियर है आपको ये? जी। Okay. 74 is a polymer based question, so we skip this one. 75 भी polymer है. 76. Which of the following compounds shown are in the same homologous series? So think of the answer. सारा, आप मुझे बताओ क्या इसका आंसर होगा? Okay, so yes, B is the correct answer. ये सारे alcohols के हैं, so 1, 2 and 4. B is the correct answer. 77. Question 77. Which compounds contain the same number of carbon, hydrogen and oxygen atoms? For this purpose, you need to write the structures. इसका आंसर उसी से आपको मिलेगा. So draw the structure by yourself and find the answer. अहमद, आप मुझे आंसर दो कि कितने कितने आ रहे हैं. How many carbon, how many hydrogen, how many oxygen? अच्छा, आपने पिछले का बी आंसर दिया था. ऑलराइट. Sarah, do the drawing of the structures and find the answer. नहीं बन रहा. किसी भी मॉलिक्यूल का नहीं बन रहा. अल्कोहल कौन सा पार्ट होता है? और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा पार्ट होता है, या कौन सा चीज पार्ट बोल रहे हो आप? स्टेम नेम मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ. इतना ही काफी है अभी के लिए. ठीक है. सो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. मैं पहले को छोड़ता हूँ. बी, इस कंपाउंड को देखता हूँ, एक्स को. एक्स में मिथाइल CH3, और उसके बाद फिर इथाइनोएट. सो O2CH2CH3, मिथाइल इथाइनोएट. अब इसमें ये मिथाइल का पार्ट है, ये इथाइनोएट का पार्ट है, तो 3 कार्बन एटम हो गए इसमें. इसका आप कहेंगे सेम नंबर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सो वी हैव C3, 5 plus 3 8, H8 and oxygen 2. So none of them are same.
बल्कि हमने यहाँ पर हर कंपाउंड के लिए फाइंड करना है सेम कौन से हैं। अभी मैंने एक्स का किया है, हम डब्ल्यू का भी देख लेते हैं फिर। इथाइल मिथाइनोएट, तो CH3 मिथाइनोएट, HC डबल बॉन्डेड O एन ऑक्सीजन, ये मिथाइनोएट हो गया। और इथाइल CH2CH3, इससे हमारे पास कार्बन है 3, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन काउंट करते हैं 5 प्लस दिस वन 6, H6 एंड O है O2, C3H6O2। So I need to check how the carbon atoms are similar but hydrogen atoms are not similar. आपका स्ट्रक्चर मैच कर रहा है फिलहाल W एंड X का? मिथाइल मिथाइनोएट CH3O, so we have two carbon atoms C2H4O2, and then thiolthanoate. इसमें वैसे ही कार्बन एटम डिफरेंट है। Methyl ethanoate is something like this, CH3. Okay, now this is fine. यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी, वो स्लाइट मिस्टेक ये थी. This is how we have to draw the structure. So 3 from here, 3 from here. So C3H6 and then O2. So C3H6O2 is similar to C3H6O2. इन दोनों का स्ट्रक्चर आपस में मैच कर रहा है. Methyl thanoate and ethyl methanoate.
So W and X are same, so A is a correct answer. स्ट्रक्चर जब आप ड्रा करेंगे प्रॉपर वे में लाइक दिस वन, फिर आपके पास आंसर जो है वो करेक्ट आएंगे. कंडेंस फॉर्मूला में आपको मिस्टेक हो सकती है जिस तरह से भी हुई थी. क्वेश्चन 78 को हम स्किप करते हैं, पॉलीमर से है. 79 भी पॉलीमर का है. 80 जो है वो पेट्रोलियम टॉपिक से है, तो हम इसको भी स्किप करते हैं. 81 भी हाइड्रोकार्बन से है. 82 इसमें ऑप्शंस में एक हाइड्रोकार्बन का है, बाकी इस चैप्टर के हैं अल्कोहल, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड. तीनों जो ये फंक्शनल ग्रुप हैं ये इसी चैप्टर में आएंगे. एस्टर भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है. Substance Z has the following characteristics. It burns in an excess of oxygen to form carbon dioxide and water. Excess of oxygen में हमारे पास A B C D सारे आ जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मर्जी हो अगर वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में आता है, बर्न करता है, कंबस्शन शो करता है, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है. सो हम इस बेस पे नहीं बता सकते. 2 says it is oxidized by air to form a liquid smelling of a vinegar. विनेगर जैसे ही उसकी स्मेल होगी. It is oxidized by air to form a liquid smelling of vinegar. अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जिसका स्मेल विनेगर जैसा हो वो एथेनाइक एसिड होता है. और एथेनोइक एसिड क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो एथेनॉल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ और वो हो गया विनेगर. विनेगर इज अ एथेनोइक एसिड. सो सी कुड बी द राइट आंसर. फिर इसके बाद है 3. इट रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर्स. तो अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड combine together to make ester. So obviously C is the correct answer. Question 83. Ethanol is manufactured by the catalytic addition of steam to ethene and by fermentation. Which row shows an advantage and a disadvantage of using the catalytic addition of steam to ethene compared to fermentation? हमने कैटेलिटिक एडिशन की ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज को चेक करना है. कंपेयर करेंगे फर्मेंटेशन से. एडवांटेज क्या है? फास्ट. सो यस, फास्ट होता है ये. और उसके बाद फिर डिसएडवांटेज, द प्रोडक्ट इज इम्प्योर. द प्रोडक्ट इज इम्प्योर, दैट इज नॉट द डिसएडवांटेज. उसका प्रोडक्ट प्योर होता है. यूजेस नॉन रिन्यूएबल्स मटेरियल्स, ये इसका डिसएडवांटेज है. और साथ में द प्रोडक्ट इज प्योर इज आल्सो द पॉइंट ऑफ द एडवांटेज. ये दोनों ही आते हैं, फास्ट भी है और प्योर भी है. बट उसके अगेंस्ट उसका डिसएडवांटेज रॉन्ग है. स्लो नहीं है, वो फास्ट है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. 84 पॉलीमर का है, स्किप दिस. 85 भी. 86 पेट्रोलियम से है. 87 पॉलीमर. 88 पॉलीमर. 89 पेट्रोलियम. 90 पॉलीमर. 91 पॉलीमर. 92 पेट्रोलियम.
Question number 93. The diagram shows the structure of two organic molecules. Which statement about these molecules is not correct? Not correct. They are both alcohols. ये correct है. हमने not correct find करना है. B. They both produce carbon dioxide and water when they burn in oxygen. ये भी correct है. They contain different functional groups. So that is wrong. They contain same functional group. So is the correct answer. So let's see another relevant question. Polymer. Question 95. Ethanol is manufactured by fermentation or by catalytic addition of steam to ethene. Which statement is correct? Fermentation uses a high temperature. यही part wrong हो गया. B. Fermentation uses a non-renewable resources. ये भी wrong हो गया. The catalytic addition of steam to ethene produces purer ethanol than fermentation. That is a right. Pure form होती है. The catalytic addition steam to ethene uses a biological catalyst. That is wrong. This part is wrong. So C is the correct answer. So that's all for today. You can practice some more questions from the worksheet. And if you have any queries, you can let me know. All right. So that's all for today, students.